ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਲੀਨ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ এনवायरमेंट ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ এনवायरमेंट ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਕੁਝ ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਯੂ ਆਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਨਹੇਲਿੰਗ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਏਅਰ ਓਨਲੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਈਵਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਮਫੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ UK ਹੈ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ AQI ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਿਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ AQI 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ AQI ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 250 300। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? कैसा रहा आज का सेशन? कौन कौन से टॉपिक ने इसमें इस पे DMC के ही नहीं अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है, मेडिकल स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है, और केवल इतने ही नहीं, एनवायरमेंटलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना के जॉइंट कमिश्नर ने इसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम सब इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हम चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, हमारे पास कितनी भी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे लंग्स को डैमेज हो रहा है। सो एयर क्वालिटी को जब तक हम बेटर नहीं करेंगे, और ये हम सब का जॉइंट एफर्ट होना चाहिए जिससे हम अपनी एयर को बेटर बना सकें। यही वजह थी कि हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इन्वॉल्व किया है इसमें, और जॉइंट कमिश्नर हमारे पैनल डिस्कशन में शामिल होंगे और वो अपने व्यू पॉइंट रखेंगे हमारे साथ अगले सेशन में। साथ ही साथ अगर हम पंजाब के दूसरे शहरों की बात करें तो अमृतसर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके और बहुत अच्छा काम किया है। और हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि हम सब मिल करके एक टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, एनवायरमेंटलिस्ट, डॉक्टर्स या दूसरे रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, ये सारे पिलर्स हैं जो इस मूवमेंट को आगे ले जाने में हम सबकी मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, और हमें अपने छोटे बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम कहीं भी स्मोक या कहीं भी हम जनरेशन जहाँ पे भी कर रहे हैं इनको रिड्यूस करेंगे। और यही हमारे रोल मॉडल्स होंगे, यही हमारे एम्बेसडर्स होंगे जो अपने घरों में अपने माँ बाप को इंसिस्ट करेंगे, अपने पड़ोसियों को इंसिस्ट करेंगे कि हम इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकें। और डेफिनेटली हमारी किसानों से अपील होगी कि पराली के जो सरकारी माध्यम है जिनके सहारे वो पराली का बेटर प्रबंधन कर सकते हैं, जलाने के बजाय उनको यूज़ करें, क्योंकि पराली जलने के बाद केवल धुआं नहीं होता है, हमारी ज़मीन भी खराब होती है। देखिए, ये एक बड़े लेवल की चीज़ है जहाँ पे आर्टिफिशियल रेन की बात करें। हमारा पर्पज़ है हम किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ पर क्यों जाएं, अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम खुद
एफर्ट्स डाल करके इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप सबको कोविड टाइम याद हो, लुधियाना शहर से हम छत पे खड़े होकर पहाड़ियाँ तक देख पाते थे, क्योंकि उस समय कोई गाड़ियाँ सड़क पे नहीं होती थी, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा था, और आप सोचो थोड़े से समय में एयर क्लीन हो गई थी। तो ये एफर्ट हम अगर रेगुलर डालना शुरू कर दें तो शायद हम एक क्लीन एयर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज का सेशन सबसे पहले बताइए कैसा रहा? आज हमने लुधियाना फोरम फॉर क्लीन एयर लॉन्च किया है। जी ये फोरम लुधियाना के वासियों के अपना बनाया हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर्स और मल्टीपल दूसरी कम्युनिटीज़ इसमें ज्वाइन कर रही हैं, ताकि लुधियाना के सभी लोगों को मिलकर इन्वॉल्व किया जाए, अवेयर किया जाए और उनकी पार्टिसिपेशन के साथ में हेल्थ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके प्रति हम मिलकर काम कर सकें। एक कोई सेशन से ज्ञान थोड़ा तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक ग्राउंड के ऊपर उसका काम नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए आज अलग अलग स्टेक होल्डर्स आए हैं जो अपना कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में क्या काम करेंगे, और इसको अगर हम कॉन्टीन्यूसली करते जाएंगे तो हम अपनी सेहत को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डैमेज बहुत हो चुका है, आने वाले समय में डैमेज और ना हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना जरूरी है। सर, किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली लुधियाना शहर की अगर बात करें इसमें? देखिए, अगर हम समस्या को देखेंगे तो धुआं कहीं कितने सोर्स से आ सकता है। एक धुआं है जो हमारे ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, दूसरा इंडस्ट्री से आ रहा है, तीसरा हाउस होल्ड से आ रहा है, हमारा डस्ट जो है कंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ हो रहा है, वेस्ट बर्निंग हो रही है, पत्तों की बर्निंग हो रही है, और हम जाने अनजाने में ये सब किए जा रहे हैं। और जब ये धुआं जब हमारे अंदर जाता है, PM 2.5, वो हमारे लंग्स के माध्यम से हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है और सभी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। हम सबको, अगर मान लो कि मुझे अटैक करने आए तो मैं अपने आप को बचाने की तो कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम पे क्या अटैक हो रहा है लुधियाना वासियों को समझना पड़ेगा। और ये एक बहुत ज़बरदस्त स्लो पॉइजन है। हम लोग शायद एक भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्जन 2.0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमको मालूम नहीं हमारा शत्रु कहाँ है, हमारी हवा के अंदर है, हम उसे इनहेल करते हैं और जो हमारे को अंदर से खोखला करता जाएगा। ये आज की डेट की मेडिकल इमरजेंसी है, हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे? तो लंग केयर फाउंडेशन, मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ, राजीव खुराना के साथ नहीं जुड़ना है, उन्हें आपस में जुड़ना है और आपस में जुड़कर काम करना है। हम अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, हम लुधियाना को अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, काम यहीं से होगा। इसलिए जुड़ाव हमारे साथ नहीं, जुड़ाव आपस का मिलकर जब हम काम करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हर लुधियाना वासी के लिए एक बड़ी वाइटल चीज़ है कि आप पूरे लुधियाना को बदलने की बजाय जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, उसके 20 मीटर से 200 मीटर के दायरे में कुछ कीजिए। चाहे वो पेड़ लगाने का काम हो, सफाई का काम हो, पत्ते ना जलने दिए जाएं, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं पर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। कोल जल रहा है तो बिजली आ रही है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ियों को कूलिंग कीजिए, जितना हो सके हम ड्राइविंग को भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर गाड़ी को बंद करके रख दें। ये छोटे छोटे काम है जो हर कोई करेगा तभी लुधियाना में ये बदलाव आएगा। अब सोचिए कि एक जगह पर 100 गाड़ियाँ ब्लॉक जमी हुई हैं और वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। अगर 100 गाड़ियाँ 2 मिनट के लिए भी बंद कर दी जाएं जब तक ट्रैफिक सिग्नल है, तो कितना असर उस एरिया में होगा। ये डिसिप्लिन हर एक को लेके चलना पड़ेगा। Look at the preventive measures. As a cardiologist, I can say, firstly, as a principle, I can say that everyone has a role in the society to do, and I really liked Dr. Rajeev's idea, and I picked up that research is something that institutes can do, awareness others can do, but as an institute we must do some research on what are the harmful effects of environment. I wrote a book on pollution and I gave it to Mr. Ratra. I don't know whether he had a chance to read and like it or not, but it was a one endeavor on my part and one of my friends. We wrote on pollution effects on various organs in the body, and many of our faculty members contributed to that book also. We are aware as doctors because cardiology, now pollution is the new smoking. Actually, people have realized that the air pollution affects even greater than
We used to talk of active and passive smoking, but pollution has assumed greater heights. We did a study in our institute in which we looked at the admission patterns of patients, and we found that during the months when we have this burning of the crop, the pollution levels go up and patients in the heart center admissions go up by 20 to 25. It is an article which is published in a very high impact factor journal. So I would say others should take it up, and we should, even the health minister, Mr. Balbir Singh, was the other day very passionately asking us all as doctors to produce some data to show how pollution is having harmful effect upon our society. So it's very heartening to see such important people here, and also a group of youngsters who can take this message forward. Thanks to the organizations which have involved our institute in it, and I'm sure this awareness will spread from here. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Mr. Vivek